آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جسٹس آفتاب احمد گورر کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس، سلیم منگریو، جاوید اتاری، فیض ایچ شاہ کا ریفرنس سے خطاب ہے۔ جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس ندیم اختر، جسٹس محمد شفیع صدیقی شریک ہوئے۔ جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس جنید غفار، جسٹس ذوالفقار، جسٹس فیصل کمال عالم کی شرکت، جسٹس ارشد حسین، جسٹس یوسف علی سمیت ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جسٹس آفتاب احمد بولے کہ کوشش کی انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر سکوں، بطور جج وکلاء اور برادر ججز سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جسٹس آفتاب احمد گورر 31 دسمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ فل کورٹ ریفرنس میں ریٹائرمنٹ پر ان کے فل کورٹ ریفرنس دیا گیا۔ سلیم منگریو، جاوید چھتاری، فیض ایچ شاہ کا ریفرنس سے خطاب، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس ندیم اختر، جسٹس محمد شفیع صدیقی شریک ہوئے۔ بلال احمد سے مزید جانیں گے۔ بلال، اپڈیٹ کیجئے گا اس کے حوالے سے۔ احمد گورر 31 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ان کے اعزاز میں سندھ ہائی کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی صدارت کی، جبکہ سینئر پیونی جج جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس ندیم اختر، جسٹس محمد شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس ذوالفقار احمد خان، جسٹس فیصل کمال عالم، جسٹس ارشاد حسین خان، جسٹس علی سعید اور دیگر جو ججز ہیں انہوں نے شرکت کی، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر، پروسیکیوٹر جنرل فیض ایچ شاہ، کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اشفاق گلال، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سلیم منگریو اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور دوران سماعت جو وکلاء قیادت ہے اور جو ججز ہیں انہوں نے جسٹس آفتاب احمد گورر کے اعزاز میں ہونے والے فل کورٹ ریفرنس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ جو ان کا دورانیہ ہے جج بننے کا اور جو ریٹائرمنٹ کا، وہ ایک سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مفاہمتی عمل کے نتیجے میں مقرر کیے جانے والے سید شکیل احمد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد۔ جی بالکل، سید شکیل احمد ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ مقرر کیے گئے تھے گزشتہ روز۔ آج باقاعدہ ان کی جانب سے عہدے کا چارج سنبھال لیا گیا ہے، افسران سے میٹنگ بھی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شکیل صاحب، فرمائیے گا کہ چارج سنبھالنے کے بعد کن مسائل کو آپ کی جانب سے فوکس کیا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور خاص طور پہ یوٹی میں روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سروس کا مسئلہ ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کی پرائرٹی بنائی جائے، کس کام کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ آج میری باقاعدہ تمام افسران سے آفیشیلی میٹنگ ہے، اس کے ہم لے آؤٹ کرتے ہیں کہ پرائرٹی بناتے ہیں کہ پہلا کام کون سا کرتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہیں، تیسرا کام، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جنگی بنیاد پہ کام کو کیا جائے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اچھا، یہاں اس ڈسٹرکٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ڈینگی کا زور بھی جو اگر کراچی بھر کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ تو عوام کی صحت اور جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ اس کے لیے میں انشاءاللہ سی ایم صاحب سے بھی ملوں گا، پھر گورنر صاحب سے خاص طور پہ ملوں گا، پھر میں جا رہا ہوں ایڈمنسٹریٹر گورنر صاحب سے بھی میٹنگ ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا اور ان کو فورس کروں گا کہ اسپیشلی طور پہ ان علاقوں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فنڈ اور کوآپریشن پرووائڈ کریں۔ بالکل، فنڈ ہوں گے تو کام ہوگا، اور ترجیحات بتا رہے تھے شکیل احمد کہ ان کی ترجیحات عوام کو فوری ریلیف دینا ہے اور اس پر عمل درآمد کا آغاز آئندہ چند روز میں کر دیا جائے گا۔ جی، لیاری نرسنگ کالج کے طلبہ کراچی پریس کلب پر سراپا احتجاج ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ شبانہ بلوچ کل خود انہوں نے دھمکی دیتی رہی ہیں اور آج کالج میں براجمان بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی طلبہ کو داخل ہونے نہیں دیا۔ طلبہ نے لیاری نرسنگ کالج میں رینجرز تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے عبید شاہ سے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں کراچی پریس کلب پہ موجود ہوں۔ لیاری نرسنگ کالج کے جو طلبہ ہیں ان کا احتجاج چھٹے مہینے میں داخل ہو چکا ہے۔ طلبہ کو کالج کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سابقہ پرنسپل شبانہ بلوچ چارج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کل وہ کراچی پریس کلب پر انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا اور خود سوزی کی کوشش کی تھی، تاہم ابھی بھی وہ کراچی جو لیاری جنرل ہاسپٹل ہے اور لیاری نرسنگ کالج ہے وہاں پر موجود ہیں اور طلبہ کو داخلے کی اجازت نہیں دے رہی، جبکہ نئے پرنسپل کو بھی وہ چارج دینے کو تیار نہیں ہے۔ محکمہ صحت سندھ تمام تر صورتحال میں
बिल्कुल बेबस नजर आता है। यहाँ पे इरफान मौजूद हैं, लियारी नर्सिंग कॉलेज के तालिब इल्म, हम उनसे जानते हैं कि आज क्या सूरत हाल है और कल के जो वाकयात हुआ है, कल भी तो तशद्दुद हुआ तुलबा के ऊपर, उसके बाद इसमें कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई। जी इरफान बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान अहमद है और मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियारी का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। बेसिकली हमारा 6 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तकरीबन इसके बीच में कमेटी भी बन चुकी थी। उसके बाद इसके ऊपर जो कमेटी बनाई उसके अगेंस्ट जो हमने एलिगेशन लगाए उसके ऊपर साबित हो चुके हैं। उसके बाद जब इसका लेटर निकल चुका था कि लियाकत आबाद ट्रांसफ़र हो चुकी है और नया प्रिंसिपल की तैनाती हो गई थी, इरशाद आबादी उनका नाम है, तो उसके बाद ये प्रिंसिपल को धमकी दे रहे कि आप यहाँ पर आओगे, हम आपको वो कर देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद हम कॉलेज के अंदर जा रहे, बार बार जो एंट्री हमारी होती वहाँ पर हमें वहाँ के जो गुंडे अनासर है वो हमारे पर हमें मारने की, जान मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमें टांग मारने की, मतलब जितनी वो कोशिश कर सकते वो कर रहे हैं। लेकिन हालांकि हम स्टूडेंट हैं, हम अपने हक के लिए खड़े रहे, वहाँ पर खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद जब हम परसों कॉलेज के अंदर गए, फिर वहाँ पर जो यहाँ के एमपी उनको मारा, उनको जान के मारने उसको धमकी भी दे रहे, उसके पाँव जख्मी हो गए वहाँ पर। तो उसके बाद ये हमें हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी के यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह कुछ नहीं है। हम पूरा अमन लोग, हम स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते। हम पीपल पार्टी वाले के पास भी गए, हम यहाँ पर जो MNA है इरशाद शकूर शाद, उसके पास भी गए, लेकिन हमें पता चला कि उसका वो रिटायर मतलब इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद पीपल पार्टी के पास उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। फिर हम मजबूरी, स्टूडेंट की मजबूरी होती है, जो स्टूडेंट जो MP हमारे लिए काम कर सके हम उसके हक के लिए खड़े रहेंगे। जी, जैसे कि लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि 6 महीने से वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक 17 ग्रेड की अफसर के सामने महकमा सेहत बेबस नजर आता है। वजीर सेहत ने जो कमेटी बनाई थी, 3 रुकनी कमेटी, उसके सामने उनके ऊपर लगे हुए इल्जामात भी साबित हो चुके हैं। यही वजह है कि उनको लियारी नर्सिंग कॉलेज से ट्रांसफर है, लेकिन वो अपना चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि तलबा आज भी उबैद, आपने हमें अपडेट किया और अवामी सहूलत के मंसूबे अवाम ही के लिए बायस ज़हमत बनने लगे हैं। रेड लाइन के तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया, जिसके बायस शहरी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आदिया। बिल्कुल, बहुत से मंसूबे ऐसे होते हैं जो कि आवाम की सहूलत के लिए होते हैं और रेड लाइन मंसूबा भी कुछ इसी तरह का मंसूबा है। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड जो कि पहले भी इसकी तामीर से कबल जाम रहता था, लेकिन अब जबकि इसकी ग्रीन बेल्ट की कटिंग की जा रही है और उसकी वजह से रोड कंजस्टेड हो गया और अब ट्रैफिक जैम जो है मामूल बन चुका है। यहाँ के जो गुजरने वाले हैं, रागीर हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब गाड़ी बिल्कुल बम्पर टू बम्पर पैक होती है और ये सुबह से लेकर रात तक यही कुछ होता है? रात 12 बजे तक तकरीबन यही रश होता है। इस तरह होता है। ये हमारे सामने दुकान है, मोटरसाइकिलों वाले फुटपाथों पे चलते हैं, कोई उठा के जो है ना फुटपाथों पे चलते हैं। तो इससे बहुत बड़ा मसला हुआ है। और यह है कि अब हुकूमत से दरख्वास्त है कि जितना जल्द हो सके तो इसको तामीर करें ताकि ये मसला हल हो जाए। आगे यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है और मदरसे हैं और भी मतलब लोग काम पे जाते हैं, 2-2 घंटे लेट जाते हैं। लिहाजा जितना जल्द हो सके इसको तामीर करें और ये रश ख़त्म कर लें। आप देख रहे हैं कितना बड़ा रश है। बिल्कुल, आवाम ये कहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस मंसूबे को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाएं ताकि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये ना करना पड़े, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम में एक तो आलूदगी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, दूसरा सबसे बड़ी बात कि फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शाहरा है। यहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जाम पहले भी देखने को मिलता था। सुबह के वक्त में जब लोग दफातर जाते थे, स्कूल कॉलेजेस, इस रोड पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये लोग तमाम जो हैं वो ताख़ीर से पहुंच रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि इस जो कंस्ट्रक्शन है इसे जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। सिंध सरकार ने ड्यूटी चोर महकमा स्कूल तालीम के असातिज़ा को एक और मोहलत दे दी है। घोस्ट टीचर्स को रूबरू एडिशनल सेक्रेटरी के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे इस हवाले से आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। सरकार ने ड्यूटी चोर जो असातिज़ा हैं उनको एक बार फिर से मोहलत दे दी गई है। 24 दिसंबर तक उनको वाज़ेह तौर पर वार्निंग दे दी गई है। 24 दिसंबर तक ये जो गोश्त असातिज़ा हैं फौरी तौर पर जो एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम है शमसुद्दीन उनके सामने पेश होकर वजाहत पेश करें, वरना उनको मुलाजमत से फारग करके रिपोर्ट जो है महकमा स्कूल तालीम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मरसला जारी किया है जिसमें ये अहकामात दिए गए कि पूरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने साहब को एडिशनल सेक्रेटरी के सामने पेश होना होगा, वरना इनको मुलाजमत से फारग कर दिया जाएगा। जी, मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।
महंगाई और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से ताजिर बिरादरी मुश्किलात से दोचार हो गई है। मौजूदा सूरत हाल से पापोश मोबाइल मार्केट में भी कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हैं। मजीद बता रहे हैं बसीम इफ्तिखार। आज इस वक्त मैं पापोश के इलाके में जो पापोश मोबाइल मार्केट है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमने सूरत हाल देखी है और जो दुकानदारों से जो हमने सूरत हाल मालूम की है वो ये है कि यहाँ पर अब जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जो कि गुज़श्ता सालों में उसमें तेज़ी का रुझान देखने में आता था, अब जो है वो रुझान देखने में नहीं आता। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं पापोश मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मुनीर। इनसे जानते हैं यूसुफ साहब क्या वजूहात हैं कि जो हमने दुकानदारों से जो इतलात हासिल की हैं उनका ये कहना था कि पहले मोबाइल ज़्यादा बिकते थे, अब जो है वो कस्टमर्स ही नहीं आ रहे मार्केटों में, क्या वजूहात है और कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मोबाइल्स के रेट भी तकरीबन आप ये समझ लें कि 70 to 80% इंक्रीज़ कर गए हैं। जो मोबाइल हम पहले लेते थे 14-15 हज़ार रुपये का, वो कस्टमर की रेंज से बाहर हो गया इस वक्त और वो 24 से 25 हज़ार रुपये तक पहुंच गया। एक नॉर्मल मोबाइल आप अगर लेते हैं तो उसमें महंगाई सबसे बड़ा इशू है। और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ने अभी ये पॉलिसी ऐलान की है कि आप जो है अपनी दुकानें जो हैं 8 बजे या 8:30 बजे के करीब बंद कर दें। वो हम लोगों के लिए वैसे ही मुश्किल हुआ है, घर का कमाना और उसमें अखराजात जो हैं इतने बढ़ चुके हैं कि हम अपने जो है बाल बच्चों का पेट पालें या इसके अलावा कि हम अपना कारोबार करें। वैसे ही कारोबार नहीं है बिल्कुल भी किसी भी किस्म का यहाँ पर, तो इसलिए हमें बड़ी परेशानी है इस मामले में। यूसुफ साहब ये बताएं कि हल क्या है, किस तरीके से मार्केट की रौनक जो है वो बहाल हो जाए, वापस आ जाए और दुकानदार भी खुश हो और जो कस्टमर है वो भी खुश हो, आपके पास क्या सलूशन है? इसका सलूशन जो एक तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट को इसमें कोई चीज़ें करनी चाहिए, उनको सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर महंगाई कंट्रोल होगी तो उसके साथ ही जो है ना सारी चीज़ें इससे मतलब रिलेट करती हैं, जिससे हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और उसमें कुछ पॉलिसीज़ उनको ऐसी अपनानी चाहिए कि जिससे हम दुकानदारों को बहुत फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, ये थे यूसुफ मुनीर जिनका कहना है कि महंगाई की वजह से शहरियों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो शदीद मुतासर हुई है। जी सनतकारों ने वफाकी हुकूमत के जल्द मार्केट्स बंद करने और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने के फैसले को मुअश्शद के लिए दुरुस्त करार दे दिया। काटी के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा है कि मार्केट को रात 8 बजे नहीं बल्कि शाम 6 बजे बंद कर देना चाहिए। मजीद जानेंगे इस हवाले से अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है जिसमें कहा है कि मार्केट्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे और शादी हॉल 10 बजे। इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि ये ईंधन की जो फरामी है उसको कम करने के लिए, अखराजात को कम करने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। यहाँ सनतकार और काटी के साबिक सदर जो है राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसा फैसला है। सर, गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है 8 बजे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको 8 बजे नहीं, इसको 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। और आप देखें, बड़े अफसोस की बात यह है कि सर्दियों के मौसम के अंदर अभी जैसे आजकल 6 बजे मगरिब हो जाती है तो भी शादी हॉल जो है वो 11-12 बजे तक खुले होते हैं और मार्केट जो है 11-12 बजे तक खुली होती है। जब गर्मी का सीज़न आता है, जब मगरिब 7:30 बजे तक पहुँच जाती है तो भी मार्केट 11-12 बजे तक खुली रहती है, शादी हॉल 11-12 बजे तक बैठे होते हैं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर डे लाइट सेविंग जब चलती है तो वो उसी मौसम के हिसाब से अपने 1-1 घंटे को 2-2 घंटे को आगे पीछे करते रहते हैं। और हम लोग क्योंकि बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं है, हमारी इकनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कोई दुनिया की कोई बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमको तो डे लाइट सेविंग पे जाने के लिए एनी हाउ जो बिज़नेस है उसको, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो 6 बजे से पहले बंद होनी चाहिए। जब मगरिब 7:30 तक चले जाएगी तो उस वक्त 7 बजे बंद होने चाहिए। लेकिन हमको अपना टाइम की डे लाइट एडजस्टमेंट भी करना इंतहाई इश्शत ज़रूरी है। जब मार्केट 6 बजे बंद होना शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे से आप किसी भी दुनिया के जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप उसमें जर्मनी चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, आप कभी चाइना चले जाएँ, आप यूरोप कहीं भी चले जाएँ, तो वहाँ के ऊपर सुबह अर्ली काम स्टार्ट होता है और 6 बजे से पहले वहाँ पे सारा कारोबार बंद हो चुका होता है। जी, जैसे कि आपने सुना और कहा है कि हुकूमत का ये फैसला खुशाइंद है और कहा है कि 8 बजे नहीं 6 बजे मार्केट बंद होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जल्दी मार्केट खुलनी चाहिए। यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा होता है, 12 बजे मार्केट खुलती हैं, फिर रात 11, 8, 10 बजे तक मार्केट खुली रहती है। ये सिलसिला नहीं शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर्स के डीलर्स कन्वेंशन में नई इनकलाबी मसनूआत खसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में डॉलर्स के नए मुतारिफ कराए गए टेलीविज़न, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीनों और आला कारकर्दगी के हामिल दीगर मसनूआत की नुमाइश ने इसे और भी शानदार बना दिया। डॉलर्स पाकिस्तान में इंतहाई जदीद घरेलू आलात तैयार करने वाला इदारा है जिसे सार्फिन को
बेमिसाल सहूलत मुहैया करने का 4 दहाइयों पर मुश्तमिल तजुर्बा हासिल है, जबकि डॉलन्स के पास 1800 से ज़ायद डीलर्स पर मबनी मुल्क गिर नेटवर्क मौजूद है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में डॉलन्स की वसी तहकीक और ऐसी एवॉर्ड याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ को उजागर किया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा माहौलियाती इस्तेहकाम के साथ साथ 55% तक तवानाई भी बचाती हैं। डॉलन्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमर एहसन खान ने कहा कि डॉलन्स मसनूआत की वसी तर रेंज में रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, डिश वॉशर्स, वाटर डिस्पेंसर्स, हूडर्स और होब्स, स्टीम आयरन्स, एयर फ्राइज और मिनी टोस्टर वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में डॉलन्स की 3 बड़ी फैक्ट्रियां दुनिया के दीगर ममालिक को भी मुख्तलिफ मसनूआत बरामद कर रही हैं। माहीगीर एसोसिएशन के मेंबर मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारी लॉन्चेस पर फायरिंग की जा रही है। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो 25 दिसंबर के बाद बलूचिस्तान का माल यहाँ आने नहीं देंगे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के फ़िश हार्बर पर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में माहीगीर जो हैं वो सरापा एहतजाज है। उनके बहुत सारे मुतालबात हैं। बलूचिस्तान में जो फ़िशिंग के दौरान जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस हवाले से भी ये मुतालबात को लेकर यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त माहीगीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर बताएँ किस किस्म की मुश्किलात के सामने? सर मुश्किलात को तो अगर हम बताएं तो एक अंबार बनी हुई है, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, ये एक तस्वीर है मेरे हाथ में। ये पहले लगी थी अनवर को गोली, दिन दहाड़े उसको गोली मार दी गई। वो एक माहीगीर था, वो कोई मंशियात के लिए नहीं गया था, मंशियात के लिए नहीं गया, मच्छी पकड़ने के लिए दिया था। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सालाना हम लोग 700 अरब डॉलर का रिन्यू दे रहे इस मुल्क के लिए, हमारे गवर्नमेंट तो बोल रहे कि हम एक डॉलर के लिए तरस रहे, हमारे पास बोलते ज़ेर खाने का पैसा नहीं है। तो हम बताते ये 700 मिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है ये बर्बाद होने जा रहा है, ये इस शक्ल में जा रहे। सबसे पहले हमारी अनवर को गोली लगी, मैं ये मीडिया के तवज्जुह से ये दे रहा हूँ, कोई FIR नहीं काटी गई। हमने इसके ऊपर भी एहतजाज किया, डेडलाइन दिया, नहीं काटी गई। फिर दूसरा मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये मेराज नाखुदा की है, इसको बलूचिस्तान में पकड़ा गया, गोलियां मारी गई। वो अभी भी 4 ऑपरेशन है उसका हुआ है, अभी भी वो ऑपरेशन टेटर में, फिर इसके ऊपर भी वो नहीं हुआ। फिर ये तीसरे जो मेरे हाथ में जो पेट पे गोली लगी, ये मोहम्मद इब्राहिम की है, शहीद की है। ये कुछ दिन पहले उसके वो डेथ हो गई थी। फिर पोस्ट गार्ड वालों ने हमारे साथ ये वादा किया था कि जो पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक जो 42 लाख समथिंग कुछ बन रही वो हम दे देंगे, मगर आज तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं दिया। ये बताएं कराची में लोकली सतह पर आपको किन मसाइल का सामना है और आपका आइंदा का लाएमल क्या होगा? सर बड़ी अच्छा सवाल आपने किया। लोकली सतह पे तो देखो हमारे टापे टूट फूट का शिकार है, हमारे मजदूर जो है ना, इसमें किसी में बर्फ़ वाले ने जो इस बड़ी मुश्किल काम है उसके किसी का पाँव टूट गया, वो आज तक कोई सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए। हम 5% टैक्स देते जो हमारे लांचे आते, समझो एक लांच से तकरीबन 4, 5, 6 लाख 8 लाख रुपए इकट्ठा होते, मगर ये सिर्फ लूट मार में लगे हुए। हमारे को कोई तापुस देने में ये लोग नाकाम रहे। हमारा सिंध गवर्नमेंट से भी ये मुतालिबा है कि हमारा मामलात हल करे, वफाक से भी हमारा ये मुतालिबा है कि हमारा मामलात हल करे। अच्छा, एक दूसरा बलूचिस्तान का इशू है। बलूचिस्तान में एक मौलाना उठे हुए, मौलाना हिदायतुर्रहमान नाम है, जो राह के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थों के ऊपर इस दिन हमारे लांचों के ऊपर फायरिंग किया, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ है जो बाहर समंदर में काम करती है, वो हमें तापुस देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो हमारा एहतजाज ये है कि 25 तारीख़ पर हम बलूचिस्तान का माल आने इधर नहीं देंगे, बंद करेंगे। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माना तो अगर 25 तारीख़ पे हम ये माल बंद करेंगे, 25 तारीख़ के बाद यकम पे हम अपनी लांचें बुला लेंगे। अगर ये लोग फिर भी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं बैठा, बंदों को नहीं बैठा है, तो हम वो लांच हम पूरा इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है वो माहीगीरों ने डेडलाइन दे दी और 25 दिसंबर तक का वफाकी और सिंध हुकूमत का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर जो है वो बलूचिस्तान से वो अपनी लांचें ला कर यहाँ पर खड़ी कर देंगे।